मनी कांट बाय हैप्पीनेस, क्योंकि उसके लिए उतना पैसा होना जरूरी है। आपकी पहली सैलरी क्या थी? पहला अमाउंट था धूमधरी से मुझे मिला था। फिर जब पता चला डबल रोल है तो पैसा डबल। ये बताओ 2.5 to 5 lakh 2.5 to 5 lakhs. 2.5 वाले में आत्मा होती है। I've always seen that my parents, they had more than what I am making in life, but they never spend it on themselves. मेरे घर पे मेडिकल इमरजेंसीज आई थी बैक टू बैक फॉर बोथ ऑफ माय पेरेंट्स, एंड उस समय बस मेरे पे एक ही कॉन्फिडेंस था कि मैं संभाल दूंगा। I want to have more examples for little girls around to tell that this is what women do. That is why I want to be legendary. एक बार रेस्टोरेंट गए थे, वो बिल आया तो मैं ऐसा कि पापा हम पे करेंगे, तो पापा बोलते क्यों नहीं, तो मैं बोलती अच्छा कमाने लगी है, दे देती है, एक बार दे देगी। 2 दिन ऐसे हुआ, पापा टोकने लगते थे, फिर अब ठीक है, अब तो पता ही है यही पे करेंगे। Buy what you need. Don't buy what you want to show to people. My father has been a genius since ever. I mean, मेरे को बस आपके पापा का दोस्त बनना है। Hello and welcome to another UR Roundtable of Gen Z Gets Real with Money in association with the good folks at Axis Max Life Insurance with your host Nikhil Taneja. देखो दोस्तों, बहुत अनसर्टेनिटी चल रही है दुनिया में। If I have to put it in a Gen Z dank meme way, मैंने एक ट्वीट पढ़ा था जहां लिखा था I think we all died and this is hell. And if I have to put it in a millennial way, थक गया यार, इतना सब कुछ हो रहा है, एआई से लेकर जॉब मार्केट तक, वॉर से लेके एलपीजी तक, क्लाइमेट चेंज से लेकर मेंटल हेल्थ तक। व्हेन वाज द लास्ट टाइम न्यूज साइकिल से ब्रेक मिला हमें? एट द सेम टाइम जब भी इंस्टाग्राम खोलता हूँ लगता है सब सही चल रहा है। जेन जी मैनिफेस्टेशन करके अपने अडल्ट मनी से माइक्रो रिटायरमेंट ले रहे हैं या फायर हो रहे हैं। फायर मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। चाहे ये जेन जी टर्म समझ आए ना आए, एक बात पे भरोसा किया जा सकता है, अगर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो तो अनसर्टेनिटी में भी स्टेबिलिटी मिल सकती है। एंड दैट इज व्हाई एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इन पार्टनरशिप विद कैंटार कंडक्ट्स द एनुअल भरोसा टॉक्स इंडिया प्रोटेक्शन क्वोशिएंट IPQ सर्वे, अ बेंचमार्क स्टडी that maps how financially prepared urban Indians are against unforeseen circumstances. So today I'm going to talk to some of the coolest, smartest Gen Z folks to discuss their adult money era. Can we please welcome on the table Naya Mida, Siddharth Nikam, Sakshi Jain, Pranav Sharma and Sadia Khatib. It is so nice to see young people who are, in the times of such uncertainty, have stable lives and stable careers, even though you're doing things that typically are very unstable. I think, of course, I'm more confident about where I'm in my life. But I think I've gotten very comfortable with uncertainty. I'm not scared of it anymore. Wow. And I've also realized that stability is a myth. There is nothing like stability. Even in the conventional jobs, जो होते थे कि जो ये सालों साल चलेंगे, even they are not stable anymore. So this uncertainty is the thing that helps us work more. Because if we have that feeling in our mind that our 10 years are sorted, I'll be like, no, ये project मैं नहीं कर रहा, वो project मैं नहीं कर रहा. This uncertainty is something that pushes us every day कि no, ये नहीं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा. भाई मिलेनियल्स के लिए अनसर्टेनिटी नहीं भी थी ना, तब भी हम पुश कर रहे थे अपने आप को जस्ट से। हमको तो बोला जाता था, हमको तो कोई प्यार से बात भी नहीं करता था, हमसे तो करवाते थे। So for us, we didn't really have an option, but I like that you look at it as a अच्छा ये तो करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि like I started earning from a very young age. तब तो मुझे पैसों को कैसे मैनेज करना है, कैसे संभाल के रखना है, मुझे नहीं आता था। वो मेरी मम्मी ने बहुत बेखूबी से किया है वो सारी चीज़ें। आप जब कमा रहे होते हो तो पैसों को संभालना वही एक कला है। तो जो अपने कमाए हुए पैसों को संभाल लेता है उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी हमेशा रहती है। but also that comes with time. बिल्कुल। Some will say invest in this, some will say invest in that. Yeah. But it's your money and you know how much hard work you have put to earn that money, and if you invest anywhere और वो loss हो गया then you're gone. So it's very important to learn by yourself how to invest money. साक्षी ने बहुत अच्छा सिखाया आपको इससे। बहुत लंबी बातें चल रही थी। ये तो मुझे जिंदगी ने सिखाया है वैसे। बट लग रहा है क्योंकि इससे पहले अच्छी सी बातें चल रही थी, इसकी अब मुझे समझ आया कि बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस गया है। यू मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड। मैंने 5 मिनट सिखाया, बहुत सब करेक्ट सीख गए। वो बच्चे नहीं होते पेपर में सारी पढ़ाई करके आते हैं, जिसको पढ़ाते हैं उसके ज्यादा नंबर आ जाते हैं। नहीं तो सीरियसली मतलब इवन आई थिंक अभी सब अनसर्टेनिटी इतना ज्यादा है तो इमरजेंसी फंड यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आई थिंक एवरीवन हैज एन इमरजेंसी फंड, जस्ट 6 months ही टोल्ड कि एटलीस्ट 6 months तो चल ही जाएगा। बता रही इतना ही है मेरे पास भाई। नहीं 6 महीने का 6 महीना तो चल जाएगा। I feel क्योंकि हमने इतना ज्यादा एकदम ऑफ द ट्रैक जाके कुछ किया ना, तो वो एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि यार 6 महीने का पैसा है तो चिल है, 6 महीने में कुछ और बिल्ड कर लेंगे। I want to dive deeper in all of these conversations, but हम लोग हमेशा एक गेम से शुरुआत करते हैं और दिस टाइम क्योंकि हमने बात की और आप बता नहीं रहे हो कितने आपके नेटवर्थ है, पता लगा लेंगे लगा लो through this game which is the price is right Gen Z edition। बेसिकली बहुत सिंपल है, एक
इस गेम के अंदर हम आपको ना कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, आपको उन तस्वीरों को देखकर गेस करना है इनका एक्चुअल प्राइस क्या है। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? एंड देखते हैं कौन सबसे क्लोज आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे होते हैं तो पता चलता है कि पता नहीं होता कि दूध का दाम क्या है। इसका प्राइस क्या है अभी? इसका प्राइस क्या है? पेट्रोल का 3000 रुपए में टंकी फुल होती है। That's what I know. ये पर लीटर कितना पर लीटर कितना है? I think 1 लीटर 90 रुपए का something. No. है? ओके, व्हाट डू यू गाइस थिंक? 100 103 या 107 अराउंड है। अलग प्राइस है ये तो प्रणव की बेस्ट स्ट्रेटजी है, चुप रहता हूँ, बाकियों को गेस करने दो। करने तो जब क्लोजेस्ट पहुंच जाएंगे, मैं कुछ बीच में मैंने अभी एकदम नहीं- मैं पेट्रोल की गाड़ी ड्राइव नहीं करता, तो मेरे को डीजल का पता है, मैं बता सकता हूँ आपको। नो करेक्ट, इट्स 100 to 103 105 डिपेंडिंग ऑन आप So कौन सी 97 is still close. 97 people want कि हो 90 जाए। still. हाँ। I can say that. 1 किलो टमाटर इस सीजन का बताना है, पिछले सीजन का बताना है। आज का बताना क्या था? मैंने जब लास्ट टाइम खरीदी तब का बताना, आज का 50-55 हो समथिंग नहीं यार, 30 पर केजी। नहीं, कल मम्मी बोल रही थी कि 60 रुपीज लेके जाओ। आप 60 रुपए लेके आओ, कितने किलो के लिए? अब वही मेरे को ये नहीं अब ये नहीं पता। ये वाला देसी टमाटर है, वाला महंगा आता है यार। अच्छा, हाँ, देसी टमाटर। देसी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होता है कुछ 65-70 का, आई गेस है ना, पर केजी। अच्छा, आपने 30, so she's closest। अरे हम अच्छी जगह से लेते हैं यार। नहीं नहीं, मैंने बोला हमारा तो महंगा टमाटर महंगे हैं। So it is actually gone up। ये पहले होता था 15-20 रुपए का, अब in the last couple of seasons because of everything that's happening in the world around us, inflation की वजह से it has increased। अचानक से गरीब फील हुआ है। मेरे पास थेरेपी सेशन ये है, ये बताओ, ये मुझे जानना है। क्या है? मुझे This I want to मालूम know। है, आई नो दिस। 2.5. नहीं, एक 2.5 का आता है। I have no उससे भी idea. महंगा आता है ये। This starting from बाबा 24-25 to अच्छा, 5. स्टार्टिंग इज ये 2.5 to 5 लोकल लाख। स्टोर्स में 250 रुपीस हजार उसमें आत्मा नहीं है। नहीं नहीं लाख क्या में दिया आएगा यार। लबुबू का आता है। 2.5 वाले में आत्मा होती है। और वो जो बाहर नहीं, मिलते नहीं, I हैं have ठेले seen- पे I have- 200-300 रुपए के, उसमें आत्मा ही नहीं होती। किसने खरीदे यहाँ पे? नहीं आई लव यहाँ पे हम थोड़ा ना, हमको कहाँ से, तुम्हारी मुझे किसी ने जनरेशन भेजा खरीद था। रही है। And Someone will give it to me for free. I felt हाँ. Yes, The yes. more expensive it is, the more Even yeah, negative I it would is. take something like this. बहुत creepy vibe है इसकी। इसका आंसर जो मतलब जहां मुझे पता चला है, आंसर एक्चुअली apparently it is 2000 starts per box and rare editions sell for 8000 plus। हाँ, ये तो brand बहुत का सस्ता है, logo। फिर तो सब लेंगे। फिर सब ले 2000 का लबूबू क्या क्यों है? लेंगे लोग? I know, I ठीक know. है, ठीक है। ये चीज I want to know if anyone, you can't answer this because you'll know this answer, so I want to know from the others over here। We know, मतलब अभी हमने टमाटर का भाव पूछा, बट टर्म प्लान का क्या होता है पर मंथ पैसा? Term insurance 35,000 for a year, I think 1 crore का Per month, insurance per होता है। month, per हाँ। month break it down 3,000 2,000 3,000 something like that। I think it's different for the amount that you've gotten the Yeah. term हाँ, insurance of course, for, ना? of course, average, चलो आप And it- एवरेज it बात कर लो। increases as late as you get. तो अगर आप if you're talking about a Gen Z, 25 साल के Gen Z who doesn't have मतलब स्मोकिंग नहीं कर रहा, अल्कोहल नहीं कर रहा, etc etc, no health problems, what is an average? तो खुश हुई साक्षी से, मुझे पता है, मुझे भी आएगा अभी। हल्के से बता दो। 15 to 25 25 पर मंथ पूछ, पर month 3,000 3,000, per 2,500 महीना। हाँ। I'm gonna go with all. I don't have much knowledge about insurance. she's like I found one more client। तुम बताओ। तो बेसिकली अगर 25 इयर्स के देखें और 1 करोड़ का कवर कंसिडर करें तो जितना जल्दी लो आप लोग टर्म इंश्योरेंस उतना सस्ता होता है। सो अगर 25 के पहले ले लो तो इट्स एज चीप एज 1,000 रुपीज अ मंथ। उससे भी ज्यादा, मतलब फिर तो आप लेट से ले रहे हो तब इट इंक्रीजेस, बट 1 करोड़ का कवर कैन इजीली कम अंडर 1,000 So exactly. So actually, the starting price for like an average Gen Z, and it is now you can go online and check this. Is actually starts at 500 rupees, 500 to 800 per month. जहाँ पर आप पूरी जिंदगी के लिए अपने आप को you are securing yourself, protecting yourself. फॉर द सेम थिंग मैं एक बार ऐसे ही ना कॉफी ली, फिर मैं सेकेंड डे गया, मैंने सेम कॉफी में 1 हफ्ता लगातार ऐसे पिया, फिर मैंने रियलाइज किया कि यार 350-400 रुपए की मैं कॉफी पी लेता हूँ और कॉफी मैं खुद भी बना सकता हूँ या ये भी कर सकता हूँ। वाई आई एम नॉट इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट टू यूज, जहाँ पर मैं अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकता हूँ या इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आप 400 की कॉफी पी रहे हैं, इट्स बेटर कि आप 400 का एक इंश्योरेंस plan में भी इन्वेस्ट करें। मेरा पता है वो ये balance, आइडियल सिनेरियो है कि आप ये कर पाओ,
क्योंकि जब भी मैं तो करने जाता हूँ मुझे तो लगता है कि ठीक है ना कॉफी पी लेते हैं अभी तो कॉफी पीने का मन है How does this whole thing work? I'd like to know from you. Like the Insurance, yeah. चलो बाद में आना था बट पहले शुरू कर देते हैं because someone's asked so it's why not. तो यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि आप टर्म इंश्योरेंस ही लिया करो बिकॉज इट्स प्योर प्रोटेक्शन प्लान. यू पे 1,000 रुपीज एवरी मंथ या ईयरली पे कर रहे हो तो वैसे फॉर 60 years एंड उस 60 years में इफ समथिंग हैपेंस टू यू तो योर फैमिली गेट्स अ लमसम अमाउंट. So basically it's a pure protection plan कि अगर आप basically to secure your family. Because we are all talking about money right now and also trying to understand it, I'm very curious to know two things. आपकी पहली सैलरी क्या थी? And do you know कि आपके पेरेंट्स की पहली सैलरी क्या थी? I come from a fairly middle class family. My father has worked hard for like 20 years to reach where we are today. And for me, success happened very early in life. Like I'm 23 right now. I started earning when I was 17. So I feel the money that I am earning is not my money. That's my parents' money. How sweet. For which my father worked. So my father started working at the age of 19. His first salary per month was about 400 rupees. Wow. And I got my first a small core in which I had to just tie up bands on the people on the hands of people who are entering the show. And I got 500 for that 2 hours. Crazy. And there is a hell lot of a difference between these 2 months because my father worked for like 12 hours every day without a holiday, almost 26 days of working to earn that amount, and I did that in 2 hours. Obviously there's a time frame that is coming in, but yeah. तो ये पापा ने कब बताया आपको? पापा ने बताया नहीं, मम्मी ने बताया. पापा तो सख्त रहते हैं ना हमेशा. आई ट्राई टू वर्क हार्ड एवरी मोमेंट बट मेरे को लगता है कि वो उनका पैसा जो मेरे थ्रू आ रहा है तुम ही लेते रहो आराम से. Very sweet. With me, मेरी mom basically when I lost my father और जब मम्मी एकदम सिंगल पेरेंट हो गई so उसके बाद एक जर्नी होती है सिंगल वुमन की जो बहुत ही मुश्किल होती है टू स्टार्ट फाइंडिंग एनी जिससे कि आप इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए बिकॉज हमें कोई उस तरह का सपोर्ट नहीं था तो मम्मी ने पार्लर शुरू किया था एंड देन शी स्टार्टेड टीचिंग. ये कहाँ पर था? ये प्रयागराज की बात है, इलाहाबाद. तो वहाँ पे मम्मी के छोटे से पार्लर में जो कस्टमर्स आते थे आईब्रोज करने के 10 रुपये, फेशियल करने के ऐसे रेट्स होते थे वहाँ पे, वैक्सिंग ये वो, ज्वेलरीज मेकिंग जहाँ पे नहीं कान के छल्ले बनाते हैं ये सब पूरा करते. तो इतनी मेहनत वो करती थी, मतलब दिन में 12 से 13 घंटे वो शॉप में हैं. फिर कोई ब्राइडल का कुछ आ गया, किसी का मेकअप करना है तो वहाँ जाना. तो वो सारी चीज़ें करके मम्मी महीने का 8 से 10 हज़ार रुपये निकाल पाती थी. बट डेफिनेटली वो काफ़ी होता नहीं है बिकॉज हमारा घर नहीं था. तो जहाँ पे हम रह रहे थे एक 3 BHK के घर में एक रूम लेके रह रहे थे, वैसा वाला था. तो बट जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट एड, दैट वाज माय बॉर्नविटा एड, द फर्स्ट थिंग दे सेड कि वी वांट टू टेक सिद्धार्थ. एंड वी वर लाइक कि भाई क्यों लेना है हमें हमें बैंकॉक में शूट करना है. हमने बोला हम तो कभी कानपुर भी नहीं गए. तो हम एकदम ऐसे हो गए थे क्योंकि हमें डर लग रहा था कि कौन लोग हैं ये और मुझे क्यों लेना चाहते हैं, बैंकॉक क्यों लेके जाना चाह रहे हैं. और मतलब लिटरली मेरा पासपोर्ट कुछ भी नहीं था. ऐसा कौन सा एड शूट बट द मोमेंट दे सेड कि वी विल गिव हिम 50,000 रुपीस, ले जाओ पूरा बच्चा ले जाओ. ठीक है. अब तो उन्होंने तुम कितने साल के थे इस टाइम? आई वाज 10 years old दैट टाइम. तो मुझे वो 50,000 पहला अमाउंट था जो मिला था. एंड जब धूम 3 मिली मुझे और जब धूम 3 का जो अमाउंट आया तो वहाँ पे जो मेन तो उन्होंने मम्मी को बोला कि अभी आपका बच्चा यहाँ से स्टार बनने वाला है. वाह. अब आप लिटरली ये मतलब बहुत फिल्मी कहानी है मेरी. तो उन्होंने बोला कि वी विल पे हिम ये अमाउंट. हाँ, कितना अच्छे से स्किप कर रहे हैं बार. धूम 3 के अमाउंट की जैसी बात आती है एक पॉज आता है, नई बात आ जाती है. ये अमाउंट वो 50,000 फट से बता दिया. जिस चीज के गॉसिप के लिए आया प्रणव यहाँ पर, वो तो बता नहीं रहे हो. बताने में क्योंकि वो मेरा पहला अमाउंट था धूम 3 से मुझे मिला था. तो उन्होंने बोला कि आराम से मुझे उन्होंने पहले 15 लाख रुपए ऑफर किया. तो हम लोग एक दूसरे का पैर मार रहे हैं 15 लाख. तो उन्होंने बोला कि आप ना आपको अपनी जॉब वॉब छोड़नी पड़ेगी बिकॉज मैं छोटा था तो शिकागो जाना था शूट करने. बोला वाह यार, मम्मी ने सब छोड़ दिया. और दैट 15 लाख वो समथिंग जो मम्मी ने कैलकुलेट किया कि मैं 5 साल में भी इतना तो नहीं कमा पाऊंगी. फिर जब पता चला डबल रोल है तो पैसा डबल. तो that's when we were like wow, and that was the time जहाँ मुझे लगा यार एक्टिंग करनी चाहिए. Of course. हमें लगता है आपके पास कॉन्फिडेंस आया भी इसलिए क्योंकि आपकी मम्मी ने आपको स्टेबिलिटी दे दी थी. It's only because of our parents who saw बहुत कम to they saw some sort of growth, and then now that's what
has made all of us so confident about money because we have never experienced that thing. We have never experienced that congestion in terms of money. They gave us that stability. So I think kudos to that entire generation who could do what they do for us in today's time. Because of definitely my mother, I know the value of 10 rupees also and know the value of 10 crores because I've seen both. So वो एक होता है. इसे अपने नेटवर्क तो बता दिया. बहुत ठीक है, आप लोग बताओ. I think my mother and father's initial salaries were very similar. They were both 2200, somebody was 2250 or maybe somebody was 2200. My dad started in a clerical position in a bank. My mother started as a school teacher. And my first was 25,000, 10x of that. But of course, inflation and everything. So I don't want to, again, compare because what is my money is their money as well. But I think ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनके दम पे रिस्क ले पाए बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई. जैसे मेरे मॉम डैड रिस्क इसलिए ले पाए क्योंकि 25 they have kids at 25. 20s तो आपको समझ आता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है. Your 20s you don't have clarity. So now I like to say this that 30s are the new 20s. जो उन्होंने 20s में किया था हम वो 30s में करेंगे और maybe 40s में करेंगे. I don't know. But it's amazing that how they were like अच्छा तुमको नौकरी छोड़नी है छोड़ दो. Like you know when your father and your mother says कि तेरी माँ बैठी है छोड़ दे नौकरी डरती किससे है. To hear that, I don't think my parents heard that from somebody. I don't think my dad is 10x intelligent than who I am right now. So is my mother. I'm not even like 1/10 of the talents that they have from the generation they are. हमको basic calculation के लिए phone निकालना पड़ता है. My first salary or the amount which I got was an articleship के time CA का जो articleship होता है. So I remember I got 2,000 rupees कुछ था. जब starting में मम्मी लोग का शादी हुआ था तो पापा used to give her 300-400 rupees month का. उसमें मम्मी को हम लोग के लिए ड्रेस भी खरीदना है, अपने लिए भी कुछ लेना है तो लेना है. मतलब everything वो 300-400 rupees से करना है. 10 रुपए रोज की खर्ची मेरी मम्मी भी मुझे बताती है. 10 rupees per day. That value उनके लिए इतनी ज्यादा थी because they've also come from एक scarcity से आए थे ना. My grandparents were refugees. तो हम तो मतलब आए थे यहाँ पर and we had to start literally from camps. वहाँ से हमने शुरू किया. What my parents have been able to achieve, what our grandparents have been able to achieve, उन्होंने literally अपने बलबूतों पे जैसे कहते हैं खड़े हुए हैं. And on top of them and on top of their labor and on top of their efforts, हम आज जहाँ पर पहुँचे फिर भी as you said it's a very interesting thing कि अभी भी हमारी stability शायद इतनी नहीं है. हमारे पेरेंट्स ने लबूबूज नहीं खरीदे. माचा नहीं. इवन हमारे दादा दादी if you talk about our grandparents, उनकी सैलरी हमारे माँ बाप जितनी नहीं थी. बिल्कुल. My father started from 5,000, my grandfather started from 500. But in that 500 उन्होंने 5-6 बच्चे पाले, उन सबको ऑफिसर्स बनाया और उन्होंने भी अपना घर खरीदा और उन्होंने वो विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 साल में कर दिखाया. और हमें 10-10 साल 5-5 साल आई एम श्योर फॉर मोस्ट ऑफ अस उतना ही टाइम लगा. ऐसा नहीं है कि हमने ओवरनाइट किया. So it has been there's some sort of very divine force behind this. I don't know, and I call it barkat. You know, it's very. You can have 10 crore रुपए और उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी. You can have 10 लाख रुपए and you must be very satisfied with it. It's just how you earn it. Sorry to cut you, but मुझे ऐसा लगता है this is a mindset. Like शायद वो they were raised to be fulfilled and be happy because the world didn't have internet. You wouldn't know a lot about what others are making or what others are doing. With Generation Z, आप सारा दिन देखते रहते हो कि ये influencer घूमने चला गया, इसके पास इतना है, ये वो है. तो जो feeling of बरकत या जो feeling of fulfillment है वो आपको आता नहीं है. Of course, the class difference was also more to say so. आपको लेबर सस्ते में अवेलेबल होती है तो वो कंट्रीज का लेबर बहुत सफर करता है. So when you go to first world countries, the labor isn't as cheap and treated as we treat them. Electricians, plumbers, they are also fulfilled. ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे पढ़ने के लिए परेशान हैं. तो I think this is also we need to sort of balance the whole price point as well. As we grow as people, but ये जो idea of fulfillment है वो अगर आपको आना होगा तो आपको 10 रुपए में आज भी आ जाएगा, नहीं आना होगा तो 100 करोड़ में भी नहीं आएगा. So I think it's a mindset thing. Basically, as you said, it's a mindset. What I have learned from my journey is like buy what you need. Don't buy what you want to show to people. Correct. Because when you start spending money to show people, it's the when you start losing money. मुझे क्या लगता है कि and I correct me if I'm wrong and I want to hear this from you. जितना मैं Gen Z से बात करता हूँ मुझे ये समझ आता है कि for young लोग
young people today, they're not buying for showing someone else. Yes. शायद अपने satisfaction के लिए कर रहे हो. जैसे इसने प्रणव ने बोला ना कि मुझे टर्म लाइफ ठीक है, मुझे पता समझ आ गई, टर्म प्लान इज 400 रुपीज, बट मेरे को आज कॉफी पीनी है, तो मुझे दिल है कॉफी पीने का, तो मैं दिल को क्यों मारूं? तो ये कॉन्सेप्ट अगेन आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज मुझे लगता है कि वहां पर तो सैक्रिफाइस वाज फॉर आवर पेरेंट जनरेशन वेरी नॉर्मल, कि हम मारेंगे अपने दिल को, हम नहीं पिएंगे वो चाय बिकॉज हमको अपने कॉफी अपने बच्चों को पढ़ाना है वगैरह वगैरह. तुम सोच नहीं अपने बच्चों के बारे में, तो ये भाड़ में क्या बेटा, हम नहीं करेंगे 6 बच्चे. जब मैं धूम 3 कर रहा था ना शिकागो में, सो वहाँ में कल्चर देख रहा था कि वहाँ पे ना बच्चों को आई थिंक 16 साल के होते ही ना उनको घर से बाहर भेज दिया काम पे जाता भेज देते हैं है कि तुम बाहर जाओ, You don't stay with us. You don't stay with us. Go out, earn money. अपने लिए कमाओ, अपने में खर्चा करो. We don't need your money. We want nothing. हमने तुम्हें पाल पोस के चलना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे दी. Now you go and you earn your money. So I think is that वो जो thought process है और हमारे यहाँ जो thought process रहा है, जैसे बाहर के ना हमें बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि भाई कितना बढ़िया है, बच्चे बाहर निकल गए कर रहे हैं, और उनको इंडिया का भी बहुत सॉर्टेड लगता है उस मामले की. पेरेंट्स पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस करते हैं. आई एम श्योर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को रिटर्न नहीं करते, बट जो रिटर्न करते हैं उनकी एक्चुअल खुशी रिटर्न करने में होती है. जैसे आई हैव टू डिसएग्री, बोले तो खत्म करना था, खत्म करना. मुझे जैसे नहीं खत्म करना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है माँ बाप पे पैसे लुटाना. मुझे पता है कि वो इकट्ठे कभी 10 लाख रुपए नहीं खर्चेंगे, तो मैं जाऊंगा कि मैं अगर उनको ये करके दे दूं तो वो एकदम फैसिनेट हो जाते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, क्रेजी हो गया. It's a blessing to do. Agreed. It's a blessing. Only because they've never spent on themselves. जो एनर्जी आपके पास 35 में 36 में होती है ना, वो 50-60 में नहीं होती है. The world they could see at 25 or 30, they will never see it. So I wouldn't want my parents to sacrifice for my 16 and skip their 30s or whatever. Like my mother has so many dreams now, but can she trek? Has she taken care of her health? Right. No, Can she experience the world as she would have in 20s or 30s? So I wouldn't want her to skip that. ये बात ना एक्चुअली नाउ इट्स सो इंटरेस्टिंग बिकॉज वी आर नाउ यंग पेरेंट्स, और मैं मेरी वाइफ यही बात कर रहे हैं, एंड माय वाइफ हैज बीन वेरी क्लियर कि वी वांट टू गिव आवर डॉटर द बेस्ट लाइफ पॉसिबल, बट आई डोंट वांट टू स्टॉप माय लाइफ. Yes. वो बहुत ही एक क्लैरिटी है उसके लिए, और शी स्टार्टेड डूइंग सोलो ट्रिप्स अ फ्यू इयर्स अगो. तब से उसको ये है कि मैं अपनी सोलो ट्रिप नहीं छोड़ने वाली, बिकॉज मैं इतनी मुश्किल से जाके यहाँ तक पहुंची हूँ. Also, the kind of society we live in, as a woman, it's more important for her to keep her identity, which is also not a mother, you know, which is Daisy. She has to keep that alive. Daisy is a name, it's not a plant in general that she is referring to. Let me ask now, because we've been talking so much, and Sakshi, आपने तो बहुत जल्दी समझ लिया है कि फाइनेंस इंपॉर्टेंट होते हैं, पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव एज समवन हु नॉट ओनली इज अर्निंग बट आल्सो टीचिंग अदर्स कि कैसे सोचना है इन्वेस्टमेंट के बारे में वगैरह. तो as per the IPQ 7.0 survey in partnership with Kantar, Gen Zs are not only proactively saving or investing but are even slightly surpassing non-millennials. 39% Gen Zs उससे ज़्यादा कर रहे हैं. They are leading the charge in saving and investing for their dream goals. 2 in 3 Gen Zs have life insurance to protect their futures, which is insane, you know. So why do you think this shift has happened? And you know, and I want to understand from you, आपको कब पता लगा या चला कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट माइंडसेट टू हैव, यू नो, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग एंड स्पेशली समथिंग लाइक इंश्योरेंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? See, what I feel is ऐसा नहीं है कि Gen Z in general हम लोग सोचते हैं कि Gen Z does not want to invest या सिर्फ वो खर्चा करना चाहते हैं, बट ऐसा है नहीं. वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, everyone wants to show off. तो थोड़ा सा भी एक चीज़ कर रहे हैं ना तो वो इंस्टाग्राम पे डाल ही देंगे. ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा टाइम उसी पे वेस्ट करें, बट वी डोंट नो कि वो सेव कर रहा है कि नहीं. बेसिकली एक टर्म होता है ना सॉफ्ट सेविंग, वो अपना लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं, वो कॉफ़ी भी पी रहे हैं. मुझे लगता है मेरी कॉफी के पीछे सब क्यों पड़े हैं यार? खुद कमाता हूँ, मैं खुद कॉफी पीता हूँ यार. आई डिजर्व दैट कॉफी यार. You deserve that coffee. There's no questions in that. जो ये अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे शायद सेविंग्स करनी है, मुझे इंश्योरेंस में करना है, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, आई वांट टू मेक श्योर आई एम प्रोटेक्टेड, आई वांट टू मेक श्योर कि मैं सॉर्टेड हूँ. Is this coming from your understanding of either your parents or of awareness of the world around, or of like, you know, AI that is telling you ye karo? Is it coming from some underlying anxiety that I don't understand, or is it just, I mean, आप बहुत ही responsible generation हो. For me, it's entirely my parent, my father. My father has been a genius since ever. I mean, and I saw how things changed for him just by studying, just by reading, and just by
gaining and the knowledge. capability to take risk. I think something that was missing at my sort of the area that I come from. Yeah. Small town हो गया तो भरोसा subtle not subtle. Basically what I want to say is कि उनको भरोसा नहीं था यार कि फंड्स में डालने से डूब ना जाए, ये ना हो जाए, इंश्योरेंस कराने का भरोसा नहीं है कि ये लोग तो यार उनके हाँ, खर्चे माचा और स्टैनली नहीं था, उनका खर्चा बच्चों की पढ़ाई था. बट प्रणव को बच्चे करने ही नहीं है, से बोल दिया. बच्चे नहीं, मेरे को बस आपके पापा का दोस्त बनना है. मैं बहुत देर से वही सोच रहा हूँ कि कुछ प्रोसेस है क्या कि हाँ यार, मतलब ये करना बहुत जरूरी है यार. यही पे आई थिंक हमें हमारे जो सवाल है उनका जवाब मिल जाता है. डिपेंडेबिलिटी, दैट भरोसा. शी हैज दैट भरोसा अपने फादर को कि उन्होंने वो किया है, तो मुझे भरोसा है कि अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ या मैं अगर कहीं मेरी लाइफ में अनसर्टेनिटीज आती हैं या फिर कुछ हो जाता है, तो मेरे फादर हैं संभालने के लिए. बट इन लॉट ऑफ अदर्स पीपल लाइफ एक होते मैं खड़ा हूँ और मुझे पता है मैं गिरूंगा तो कोई है नहीं मुझे रोकने वाला. तो अब मुझे यहाँ से चीजें ऐसी बिल्ड करनी है कि अगर मैं गिर भी जाऊं तो मेरी जो फैमिली है वो खुश रहे, सुखी रहे और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो. And that's when you start thinking of an insurance, be it health insurance, be it life insurance, because from early age I became that breadwinner of my family. That One more security. thing my father taught me is like no matter how rich your grandparents or parents are, how much money they'll make, it will मतलब वो आपको कभी पूरा नहीं पड़ता. पूरा नहीं पड़ेगा. आपका अपना ही पड़ता है. तो आप अपने बच्चों के लिए कितना भी कमा लो, उनकी अपनी कमाई ही उनको पहुंचेगी. बरकत उनके खुद के पैसे Correct. में है. निखिल वेयर यू वर ट्राइंग टू गेट कि कौन सी वो एंजाइटी है जिसकी वजह से आपका मन करता है पैसा सेव करने का. आई थिंक वो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ ने सही बोला था कि जब कोई सिचुएशन आती है ना तब पता लगता है. मेरे साथ भी ये हुआ था कि मेरे घर पे मेडिकल इमरजेंसीज आई थी बैक टू बैक फॉर माई बोथ ऑफ माई पेरेंट्स. एंड उस समय बस मेरे पे एक ही कॉन्फिडेंस था कि मैं संभाल दूंगा. What age was this? 1 year ago. just 1 year ago. So मेरे पास उस समय एक ही कॉन्फिडेंस था. और नॉट जस्ट माई फैमिली, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में भी जब कोई दिक्कत आई तो आई हैड दैट कॉन्फिडेंस टू पिक अप द फोन एंड कॉल माई ब्रदर. जितना लग रहा है लगा बैठा है तेरा भाई. तो मेरे को लगता है वो एक चीज बोलने के लिए ना एक सेल्फ समथिंग, यू नीड समथिंग टू स्टैंड बियॉन्ड योर फैमिली. बिकॉज मेरे पापा मेरे को आके हक करके रो रहे हैं कि मम्मी का ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया. मैं अब नहीं टूट सकता. जब पापा आ गए मेरे पास तो अब मेरे को नहीं बिखरना है बिल्कुल भी. यहाँ पे पापा इमोशनली वनरेबल हो गए, उनको लग रहा है कि यार कैसे हैंडल होगा, तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे करना है. समय रियलाइज हुआ था कि ये तो रखना है अकाउंट में इतना. Like you said, Pranav, अभी my father unfortunately passed away last year, and in the hospital उनके and they were in Bahrain, the Middle East. तो हॉस्पिटल में थे, उनके ICU में थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था. And I didn't have access to his accounts. And बिल्कुल like you ना, मैं जब भी कोई बात होती है ना कि क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसा होगा, वगैरह वगैरह, मेरे को I didn't have to think twice, and I'm so grateful to the universe or whatever. He didn't survive, but just the fact that I didn't have to think twice to be like कि नहीं, best treatment, whatever it takes. आपको जो बिल्कुल बेस्ट, आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना है. मेरे पास पैसे, वो पैसे यार उस समय मतलब how important that is at that point of time to be in that place. Of course I'm much older than you, and it's great that तुम इतने यंग उम्र में भी ये कह सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ. बट मैं तो तुम्हारी उम्र पे था, मैं we also did not have those avenues. हमारे पास थे ही नहीं वो कि हम लोग एक्स्ट्रा कमा पाएं और इस तरीके से कमा पाएं कि हमारे फ्रीलांस करके भी इतने पैसे आ जाए. You had to do a job, you had to find your way to whatever it is. And while we're talking about life insurance, it's so like I never knew. my पापा ने बोला था कीवी है. When he went and then I got that email saying that ये है पैसे, that's where financial security and protection etc. come in place. बहुत I ही also feel your understanding of finance always comes from the parenting that your parent has done to you in your childhood. बिल्कुल. So the security, this thing that we're safe, it all comes from the parenting. बिल्कुल. So मेरे पापा मम्मा को ऐसा लगा कि लड़कियां जो हैं इनको कभी ना इस चीज को मांगने की जरूरत पड़े, ना इनके लिए कोई सब्जेक्ट बने, ताकि बाहर जाके ये कभी इस चीज के लिए इतना, तभी आज की डेट में अगर मुझे ये काम नहीं करना है तो चाहे मुझे कितना भी इसका पैसा आए मैं नहीं करूंगी. भूख नहीं होनी चाहिए पैसे की. I love what all the women on this table are saying, and there is one pointer. As per the IPQ 7.0 survey in partnership with Kantar, it was noted that working women are more anxious, worried about medical bills or untimely death of the breadwinner in the family. तो ये तो आप लोगों का this does not resonate, I would imagine, with you at all. I've seen this in my mother-in-law. My mother
My mother is an earning woman since forever. अच्छा मेरे घर में बड़ा इक्वालिटी से हम लोग बड़े हुए हैं कि मेरे मम्मी पापा ने पे बिल्स डिवाइड कर रखे थे कि इलेक्ट्रिसिटी का पापा देंगे और फूड और ये सब मम्मी विल टेक केयर ऑफ डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच मनी दे मेड. बट जब भी ये सारे आते हैं ना जो बड़े खर्चे हैं जैसे कॉलेज की फीस हो गई या मेडिकल बिल्स हो गए जो जिसमें चंक ऑफ मनी जाना है तो वहाँ पे आप रिलाय करते हो अपने फादर पे अपने हस्बैंड पे जैसे तो आप रिलाय करते हो उन पे कि आप ही ये तो आप ही करोगे ना लाइक एंड हस्बैंड इज ऑल्सो लाइक वो एंग्जाइटी उनमें भी है कि अगर नहीं है तो जुगाड़ना है कैसे करना है. सो आई थिंक मैन ऑफ द प्रीवियस जनरेशन ऑफ ज्यादा एंग्शियस थे और मम्मीज एंग्शियस थी कि वो डिपेंडेंट है. तो जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी और मैंने कभी भी ऐसे हवा में नौकरी नहीं छोड़ी थी कि मैं जा रही हूँ कल पोएट बनने. आई डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ प्रिविलेज. आई वाज अ वुमन लिविंग इन दिल्ली. आई नीडेड टू पे माय रेंट. There's one thing that Ayush very sweetly then said to me कि हम में से एक कमा रहा है, so you go and हम में से एक बंदा तो रिस्क ले सकता है ना. मैं कमा रहा हूँ, I have a stable income and I am the kind of woman जो मैं कभी भी अपने घर नहीं जाना चाहती थी कि यार मेरे पास पैसे नहीं है. मेरा और आयुष का एक स्प्लिट वाइज अकाउंट हुआ करता था जब मैं फेमस हुई और जब मेरे पास और पैसे आए तो मुझे याद है मैंने उसका 2.25 लाख लौटाया था. फिर जब हमारी शादी होने वाली थी and when I have like some amount and Ayush has always wanted to do business, so 4 months prior to our marriage he left his job कि अब हम में से एक तो कमा रहा है ना तो अब तू कर सकता है वो. You know, it's so nice. It very much similar happened in my case. Now, very curious to know for someone who actually talks about financial planning to everybody else. आप किससे बात करते हो जब आपको information चाहिए होती है? Yes. आप कहाँ से लाती हो information? कौन सा सॉफ्टवेयर है? जी बहुत सारी चीजें होती है जो सीए के बुक्स में वापस से मैं चली जाती हूँ कि सीए के बुक्स खोलना. बट एकदम ही प्रैक्टिकल होता है तो माय मामा इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मैं उनको कॉल करती हूँ मेरे को बताओ आप ये एक ह्यूमन सीए एक बुक सीए. बीइंग अ फाइनेंस क्रिएटर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ रहा है बिकॉज पीपल आर ट्रस्टिंग विथ you with their money. Correct. ऐसा जरूरी नहीं है कि see I don't give क्या ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ. मैं स्टॉक्स का नाम नहीं बताती हूँ बट स्टिल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस का प्लान आई एम एक्सप्लेनिंग कि टर्म इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है. तो आई मेक श्योर कि जो भी डेटा बोल रही हूँ दैट इज बैक्ड बाय द ऑफिशियल वेबसाइट. इट इज आवर ड्यूटी एज क्रिएटर्स टू एक्चुअली verify it from the original source and then put it out. वही अगर आपको अपने कंटेंट पे भरोसा नहीं होगा तो लोगों को आप पे भरोसा कहाँ से होगा? That is the most important. But I'm glad that you are doing that due diligence. आप कैसे किससे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकालते यार हो? मैं लास्ट पर्सन होना चाहिए मेरे ख्याल से पूछने के लिए बिकॉज आई डोंट बिलीव इन नंबर्स एंड I don't believe in numbers. फ्लो चार्ट्स और वो मेरे को समझ भी नहीं आते ऑनेस्टली. बचपन तक आते थे 10वीं तक आसान होते थे अब देख के नहीं समझ में आते हैं. तुमने इंजीनियरिंग की है 10वीं के बाद भी तुमने 4 साल उसके बाद किया. नहीं इंजीनियरिंग में था मैं करी नहीं है. मैं था अब तक मैंने डिग्री भी नहीं लिया इसलिए. आई लव इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड थिंग्स हैपनिंग अराउंड मी. जैसे अगर मेरा स्टॉक्स का ऐसा रहता है सिंपली कि मेरा एक भाई है जो मेरे को कॉल करके पूछता रहता है कि भाई कैसा चल रहा है क्या चल रहा है. एंड ही वाज लर्निंग अबाउट स्टॉक्स फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years. सो आई डोंट बिलीव इन एनीवन बट आई बिलीव इन हिम बिकॉज आई हैव सीन हिम वर्किंग हार्ड. तो वो बस मेरा पैसा यूज कर लेता है और ऐसे मेरे को कोई भी कभी भी आई तुम्हारा पर्सनल क्रिएटर इकोसिस्टम है. हाँ पूरा पर्सनली. 2 days ago I got a call कि यार मैं मेरे कॉलेज का जूनियर की यार मैं सोच रहा हूँ कंपनी शुरू करूँ जो ट्रैवल प्लान्स बनाएगी ये बनाएगी. मैं कहा कर मैं बैक कर रहा हूँ. तो मेरे को उन लोगों में इन्वेस्ट करने में ज्यादा मजा आता है रादर देन नंबर्स क्योंकि मेरे को समझ भी बहुत कम आती है. Have you seen returns on this idea, this philosophy? मेरा करियर ही पूरा ऐसे बना है. अच्छा आपने मतलब मेरे पास जब 20,000 थे तो मैंने वो लगा दिए. जब मेरे पे 1 लाख थे मैंने वो लगा दिए. जब मैं 5 लाख तो मैंने वो लगा दिए. और वो इवेंचुअली लोगों तक काम पहुंचता रहा, लोगों को पसंद आता रहा. एंड जस्ट केम बैक टू मी इन डिफरेंट सोर्सेज की किसी ने कहीं परफॉर्म करने के लिए बुला लिया, आप कहीं टिकटेड शो कर रहे हो, आप कहीं कॉलेज शो कर रहे हो. वो इकट्ठा होकर सारा पैसा वापस आ गया मेरे पास. अब मेरे पास जो है मैं वापस लगा दूंगा. आई एम श्योर इट विल गेट बिगर. I love this thought. Very nice. Entrepreneur. The other thing that I want to ask you folks, you know, basis this and क्योंकि तुम लोग एक तो this refreshing idea कि okay I want to invest in myself and you know not on other things or people which is superb. But एक investment ये भी होती है एक ना almost mental health investment भी होती है. I may call it that. Where I am now seeing more people and I'm hearing more people say things like कि मैं ना जैसे मैं sabbatical लिया था. अब एक नया term शुरू हुआ है जो मैंने सुनना शुरू किया है which is a very interesting term called micro retirement. Micro हाँ, retirement. so yeah, so basically ऐसे किसी ने नहीं सुना. which is of course you know कि micro retirement is intentional breaks कि जहाँ पर I'm taking a certain sabbatically मान लो I'm taking a certain kind of intentional break, a burnout break where I'm not going to worry about कितना पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है etc. I'm going to invest in myself. I'm going to invest in my health and I'm going to take a step back and if I don't earn in that time it's okay. So do you think that this is a smart way of going? Have you done something like this?
बट फॉर दैट ऑल्सो पहले ही आपको उतना फाइनेंशियली सिक्योर होना पड़ेगा कि वो नेक्स्ट आप 3-4 मंथ्स आप सर्वाइव कर पाओ. I think the younger Gen Zs, as the term you use, they're doing this. I don't think I have it in me as of now. I'll be very honest. I've not taken a break since forever, I guess. I don't know if I'll be able to take a micro retirement. I don't know. I'm just getting habitual to mini breaks as of now. But I want to add, I also love what I do. So I also don't enjoy taking a break. मतलब वो ज़्यादा बड़ा but factor है मुझे लगता है. Honestly, when you're working, when you keep on working ना, आप ज़्यादा mental peace में रहते हो क्योंकि आपका फिर दिमाग इधर उधर नहीं जाता. और मुझे ना तब बहुत बार दिमाग जैसे इधर मैंने उधर भी सुना है कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग. ये होता है because when your mind is empty, you don't know what to do. You keep Yeah, on you need a very, questioning yourself. बट जैसे आपने बोला एंग्जाइटी के बारे में, द रीजन इट ऑल्सो कम्स एंड दिस इज बिकॉज आई हैव माई मेंटल हेल्थ एडवोकेट. तो मैं ऐसे ऊपर से नहीं बोल रहा हूँ. अ लॉट ऑफ द रीजन फॉर इट इज बिकॉज यू हैव नॉट गिवन योरसेल्फ दैट टाइम. yeah. Yes. Because you have not taken that time I agree. for yourself. You've not Then your body, normalized then your body gives up at a point of Yes. time कि भाई अब तो तुम बैठाओ, अब बैठो 9 दिन, अब तुम कुछ कर ही नहीं सकते. नहीं, मेरे को लगता है जेनजी ना अब समझने लग गया है कि दिमाग थकता है और उसे रिटायर करना पड़ेगा. अगर आप एक दिन जिम जा रहे हो, उस दिन नहीं सो रहे हो, नेक्स्ट डे वापस जिम जा रहे हो, बिल्कुल. देन इट्स नॉट गेटिंग यू एनी बेनिफिट. सिमिलरली क्योंकि अब हमारा काम ज्यादा मेंटल हो गया है, तो अगर हम 1 महीना घिस रहे हैं अपने दिमाग को, तो उसको एक 3 दिन का शॉर्ट ब्रेक या 9 दिन का शॉर्ट ब्रेक देना जरूरी है कि यार बहुत important तू है. स्पेस में आ जा, वापस आ जा. बिकॉज एट द एंड यू हैव टू गेट टू वर्क द 4th डे कि अब चल स्क्रिप्ट सोच, अब चल काम कर. उसको ब्रेक देना जरूरी है. I love how you talk about your brain as a person. तू ऐसे लाइन पे आ जा बे. क्या कर रहा है अभी? I'm never going Yeah, to that is also very cool. advocate being like me also. Like I think whosoever I am and my thrill and it comes from a lot of places from my childhood. I'm also very ambitious, but I also have a certain things that I have to prove to myself, and you shouldn't have that. So, but what do you want? फिर भी now, given that we're talking on this table, what is it that you want to prove to yourself? Can I say absolutely honestly? Yes. I want to be legendary. But my brain doesn't shut up, so maybe I will take a break once I have that satisfaction. I don't have it right now. ऐसा भी हो सकता है कि ये कल को ना हो, पर ये सारी बातें मुझे फ्यूचर में जाके पता लगेंगी as I go and as I live by. I'm also training myself to take a holiday or maybe ये वो. But let's be very honest, the world doesn't function like that. You have to work very hard I from where we understand. come from. And as a woman, what scares me also, just say now I'm 29. Okay, and I'm going to have children. I want to have children. तो मैं कितनी बार बैठे बैठे सोचती हूँ कि यार 1 साल का छुट्टी तो लेना ही पड़ेगा ना. Like that. I'm already feeling weird and anxious about कि वो 1 साल में क्या करूँगी, what do I do? I'm already planning कि अच्छा मैं उस समय स्क्रिप्ट लिख लूँगी, अच्छा मैं प्रोडक्शन हाउस बना लूँगी. Imagine that. So I think, and plus I enjoy it. I can't deny the fact that how much I enjoy being out of my comfort zone. How much I enjoy कि मैंने ये वाला पंगा लिया. But I still want to know why. Why do you want to be legendary? I come from an extremely small town. Okay, my mother is legendary. ठीक है? Let me say that loud and clear. But she sort of didn't, the kind of society we lived in, women didn't get the kind of support that, they deserved. Okay? मेरे घर के पड़ोस में एक बच्ची रहती है. जब मुझे घर से बाहर जाना था और जब मेरी सहेलियों को जाना था, तो आई थिंक अगर हमारा 10 लोगों का ग्रुप होगा तो उसमें से 2 ही बाहर पढ़ने गई थी, बिकॉज दे वरंट अलाउड. ओके, कि आप यही कॉलेज करो, उनके डिसीजंस कोई और लेता था. तो वन थिंग दैट आई लर्न दैट कम्स विद power, money, fame, work, financial freedom is the ability to fight the cause and prove the point that I've always sort of felt missing is लोग फेमिनिज्म को इतना गलत लेते हैं शब्द के तौर पे, but it's equality. अब जब मैं घर जाती हूँ ना, तो वो मेरी पड़ोस की लड़की आती है और वो मेरे साथ फोटो खिंचाती है और वो अपने पापा को सब बताती है मेरे सामने. उसके पापा मुझे बताते हैं कि तुमने ये किया, मुझे इसने बताया. वो जब मैं निकल रही थी तो सब लड़कियों से ये सवाल पूछा जाता था कि बाहर जाके करोगी क्या, क्योंकि ये किस्से बहुत घूमते रहते हैं कि उस लड़की ने बाहर जाके उसका अफेयर हो गया, ये हो गया. और इन्हीं कहानियों पे ना छोटे शहर की लड़कियों को बड़ी अपॉर्चुनिटीज, बड़े ख्वाब देखने का मौका नहीं मिलता. तो मुझे पता है कि जब मेरी वो पड़ोस की बच्ची है, जब उसको कॉलेज जाना होगा तो वो डंके की चोट पे कहेगी कि देखो ना आपने क्या किया है ना. एंड nobody will be able to tell her that you don't go out. So that is why I want to be legendary. I want to have more examples for little girls around to tell that this is what women do. And very recently,
I did a podcast and I just accepted कि बहुत सारी लड़कियां शादी आज़ादी के लिए करती हैं because लोगों को पता नहीं है कि उनको freedom मिला नहीं है and you know the whole comment section is full of filth कि और मैंने कहीं पे भी I have not used the word sex but almost all the men in the comment section are talking about कि लड़कियों को आज़ादी इसलिए चाहिए. Imagine the notion that you know I'm sorry not all men of course but that is the notion they have about women freedom and I'm sure these are the men from 3rd tier 4th tier छोटे शहरों जहाँ से मैं आती हूँ तो अगर मेरे जैसी लड़कियाँ नोशन ब्रेक नहीं करेंगी तो कौन करेगा सो इफ वी डोंट चूज टू बी लेजेंडरी हु विल सो इफ इट्स ओके इफ आई डोंट हैव अ ब्रेक मे बी अदर गर्ल्स विल क्या बात इट्स ओके आई एम फाइन super duper proud of you. Okay, the last bit of it, as per the Bharosa Talks IPQ 7.0 survey in partnership with Kantar, life insurance ownership among urban Indians is at 78% right now. Why should Gen Z go for it? Especially Gen Zs जो अभी हम लोग इतने uncertain fields की बात कर रहे हैं. There is a certain amount of confidence, there's also ambition, there's also as he said phases where 2 साल तक शायद काम नहीं आ पाए. For any young person today who is not in a stable career or a stable job, or for that matter आजकल वही बात हो रही है stability है क्या? Why should a young person even go for this? See, basically what I think is आप जब earn करना start करो and you know you have people dependent on you. अगर आपके ऊपर कोई dependent नहीं हो, okay, you don't need a life insurance because even if you something happens to you, no one is going to suffer. But if you know your family is dependent on you, मतलब सब चीज़ you are the earning member and आपके parents या if you have children वो आपके ऊपर dependent है तो if something happens to you, how would they survive? They wouldn't have any earning source. So it's very important कि आप जैसे ही earn करना start करते हो and you know I have dependence on me, you take a life insurance. And plus it is so मतलब आप जितना जल्दी लो you know the cover is the premium जो बहुत कम होता है तो आप वो decision को जो late करोगे वो same insurance जो आपको 700-800 per month मिलेगा वो बाद में हो सकता है 3-4 हज़ार per month मिले and you get the same cover. So it's very important कि starting से आप इस चीज़ को sort कर दो because health insurance में तो ऐसे होता है कि आप जैसे बढ़ते रहता है the premium increases. But term insurance में आपने आज term insurance ले लिया तो आपका 60 तक है तो 60 तक the amount remains the same. तो आपका investment भी कम हो रहा है वहाँ पे. So it's very important कि आप starting से ही you exactly know कि आपको कहाँ का invest करना है. I hear you at the same time when I hear terms वही YOLO, FOMO वगैरह सब सुनता हूँ कॉफी चाहिए मुझे. अब ये सारी चीजें अगर सुनते हैं what would you tell him? How would you explain this to him कि कॉफी क्यों ना लो? See, I'm not telling coffee much to you because personally I also love enjoy. खुद के कमक में कॉफी मेरी कॉफी मना कर रही है यहाँ पे. मतलब आप पैसे कमा रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद एंजॉय करो. इट्स आपसे फ्यूचर अब इट्स द ट्रूथ. आप फ्यूचर तो कोई किसी ने नहीं देखा है ना तो आप अभी से सिर्फ सेव करके रखते रहो तो आप एंजॉय नहीं करो लाइफ को. बट यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा. अभी आप 24-25 में हम एंजॉय कर रहे हैं. अब हमें अगर 40 में एंजॉय करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अभी से सेव करने हैं तो 40 तक काम करना ही पड़ेगा हमें. मतलब आप अगर चाहते हो कि आप आगे काम नहीं करो तो अभी थोड़ा सा कहीं पे थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा. इट्स नॉट दैट कि आप घूमना जाना बंद कर दो, खाना पीना बंद कर दो, सिर्फ घर का खाओ ये वो. बट क्रिएट अ बैलेंस. आई लव हाउ इतने प्यार से समझा रही है. थोड़ा अभी थोड़ा तो एडजस्ट कर लो. इट्स ओके. सो दिस इज द एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस भरोसा तुम हो क्वेश्चन. ये हमने हर अपने राउंड टेबल पे पूछा और बहुत प्यारे प्यारे आंसर हैं. एंड इट्स अ सिंपल क्वेश्चन एंड आई फील लाइक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव डन समथिंग और द अदर फॉर द लव्ड वंस दैट यू हैव, योर पेरेंट्स दैट यू हैव, दैट मेक्स यू फील प्राउड, वेयर दे फील लाइक यू नो तुम पे भरोसा करते हैं. उसका भरोसे का कोई ऑब्वियसली इट्स वेल अर्नड. So tell me just like a moment, one anecdote, one story from your life where you have done something for your family and made you feel कि my trust and protection also goes a long way. I'll tell you something very honestly. I've always seen that my parents they had enough more than what I am making in life, but they never spent it on themselves. They had everything. They can take me to a world trip in business class, but they never spent it on themselves, even if it was about even buying a pair of clothes for himself, especially my dad. So it really chokes me sometimes कि ऐसा क्यों आपने अपनी ख्वाहिशात को इतना क्यों मारा. But now I'm like, okay, fine, like I really want a space in life where they, you know, now that my dad is retired, my mom has certain dreams. I really want a wish if via me. I wish, just that's it. Sweet. हम खर्चा ही कर सकते हैं अपने माँ बाप पे ना उनको उल्टा loved फील कराने के लिए. As Pranav said before, my mother loves to travel. तो जब भी किसी शहर में मेरा शो होता है जहाँ उनको आना होता है and without even like we don't even have to relook at the kind of money that is. वो नहीं होता कि इसका प्राइस टैग देखने वाले दिन चले गए हमारे तो हम टिकट्स नहीं देखते हैं कितने की है क्या है. We put mommy on the same flight. और the recent thing that she did was हम लोग back to back tour करके आ रहे थे तो पहली बार मेरी मम्मी ने अपना पहला फ्लाइट अकेले लिया
एयरपोर्ट गई और इट वाज सो क्यूट. जब हम वापस आ रहे थे इस पूरे ट्रिप से, कोलकाता देखा उन्होंने पहली बार, पुणे, बम्बई, ये सब, बनारस, बड़ा कुछ देख चुकी हैं वो. तो शी मेड अ लिस्ट ऑफ द सिटीज दैट शी सीन, which all of them that I've taken her along, and out of our family, the first one to sit in business class was also my mother. मेरा मैं सच बताऊं, almost because you said this, it's exactly the same कि अब जो फैमिली के फाइनेंसेस मेरे पास आए हैं, मेरे हाथ में आए, मैंने मदर को यही बोला अपनी माँ को कि अब आप जिंदगी में कभी भी बिजनेस क्लास के अलावा ट्रैवल नहीं करना. हाँ. मतलब मुझे ये भी पता है कि जो माता पिता होते हैं वो बच्चों की शादी पे सारा अपना सेविंग्स बिल्कुल यार. And I was very much against the concept. So even when I wasn't famous and जब हमारी शादी की बात चल रही थी, तो I very clearly told them that I'm going to do a court marriage because I'm not taking a penny. Gladly हमारा काम बढ़ गया, मिलने लगा. So Ayush and I were able to also fund our own wedding. मेरी मदर का यही था कि she was fighting till the last moment, क्यों बिजनेस क्लास नहीं करना, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, खर्च कर रहे हो वगैरह वगैरह. Then she went. And then she called me when after the flight, she's like, बहुत अच्छा लगा. बहुत प्यार से, बहुत अच्छा था. My mother to just make sure now that she's going to business कि क्या क्या मैं घर लेके जा सकती हूँ वहाँ से. What else can I take from here back home? ये मुझे पता, ये मेरी हेडफोन रखनी है. क्या अलाउड है? तो वो कह रही है पीछे मेरी बेटी बैठी है, उनको दे दोगे. मैं कह रही मैम, it's not allowed to give your dessert. It's nice, like this is what I do for my parents. वेल ऐसी फन स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, बट एक चीज़ जो हर बेटा सुनना चाहता है, हर बेटी सुनना चाहती है अपने माँ बाप से, जब वो ये बोलती है ना कि यार हमारा कोई था नहीं, बहुत मुश्किलों से हम यहाँ तक आए हैं, आज वो ये बोलती है कि मेरे बेटे हैं. बिल्कुल, मेरे बेटे हैं, अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे बेटे हैं, मुझे संभालने के लिए, मुझे बताने के लिए और मुझे ज़िंदगी की हर खुशी देने के लिए. वो उनकी ये बात ना ऐसा बहुत सेटिस्फाइंग फील होती है. एंड आई रिमेम्बर वन डे जब हम लोग सब मस्ती कर रहे थे, एयरपोर्ट से आ रहे थे और ऐसा रोलेक्स का पोस्टर लगा हुआ था. एंड लिटरली मतलब हमने कभी रोलेक्स, हमारे पास ऐसी कोई वॉच नहीं थी, और मम्मी बोला कि ये दिला के दिखा मुझे. She gives me such kind of things. बहुत उनको था कि ये कहाँ से लेके आए, क्योंकि सारा पैसा वो मैनेज करती है. बोली तू लेके आ, ऐसे उन्होंने दे दिया. So I was like कि ठीक है देखते हैं. And I got a money and मैंने उनके लिए रोलेक्स खरीदी. और उनको बताया नहीं, और मैंने रोलेक्स का केक बनवाया और उसमें एम्प्टी रोलेक्स का डब्बा डाल दिया. और मम्मी ने कहा मम्मी रोलेक्स तो नहीं ले पाए ना, अभी आप ही सब रख दिए, हम कहाँ से ले पाएंगे. तो मम्मी थी मस्ती कर रही थी. केक कटा, उन्होंने डब्बा देखा तो उन्होंने वो डब्बा देख के ही रो दी. अरे यार. तो मैंने पॉकेट से रोलेक्स निकाल के दिए, ये लीजिए, ये आपकी रोलेक्स. एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, दैट हैप्पीनेस, दैट इमोशंस. क्योंकि मम्मी अपने लिए कितना भी हो जाए ना, कितना ही पैसा, वो अपने लिए महंगी चीज़ बहुत रेयरली खरीदेंगे. वो दिन है और आज का दिन है, वो कहानी वो सबको बताती है. She must have called everybody to yeah. So I think that is something I have, हमें अच्छा लगता है. और बट मेन तो बात ये होती है जब आपके माँ बाप ये बोल देते हैं कि मेरे बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे संभाल लेंगे. ठीक है. तुम ये वाला जो गिफ्ट सिस्टम है दोस्तों के लिए भी रखते हो आप? हाँ, रखते हैं. पहले आप प्रे करिए कि मैं इतना भाई I want to be friends with you too. Exactly. दो तो मुझे बस मिल गए, 3 सभी यार यहाँ पर इतने जनरस लोग. यस साक्षी. कुछ 4-5 साल पहले माय दादी जी का दोनों नीज का ऑपरेशन हुआ था, नी रिप्लेसमेंट. तो मैं अहमदाबाद जाना था सर्जरी के लिए. तो अब दादाजी जा रहे थे, दादी जी जा रहे थे, बट किसी एक जन को साथ में जाना था. अब पापा नहीं जा सकते, चाचू नहीं जा सकते, दुकान में काम है. दे सेंट मी कि तुम देख लेना सारा चीज़. तो दैट वाज फर्स्ट टाइम मेरे लिए कि मैं जाके हॉस्पिटल का सब चीज़ देखना है, एयरपोर्ट पे ये सब. वहाँ जाके मुझे वैसे लगा फिर कि थोड़ा एक फीलिंग आता है कि दे हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग मी. और आई रिमेंबर वहाँ पे मेरी दादाजी और दादाजी का एनिवर्सरी भी था, तो दे वो उस दिन ऑपरेशन के नेक्स्ट डे था शायद. एंड मेरी दादी जी सारे एनिवर्सरी में मेहंदी लगाती थी. तो आई रिमेंबर मैं गई थी वहीं पे एक शॉप ढूंढने के लिए. आई बॉट अ कोन ऑफ मेहंदी, आई पुट मेहंदी इन हर हैंड ऑल्सो, डेकोरेटेड द हॉस्पिटल रूम. एंड फिर मैंने फोटोज़ भेजा था अपने फैमिली ग्रुप में. दे ऑल वाज सो हैप्पी. मतलब फिर मेरे को लगा कि उन्होंने मेरे को अकेले भेज दिया, मतलब ठीक है, दे हैव स्टार्टेड थोड़ा सा ट्रस्टिंग मी. आई टॉक अबाउट द मनी थिंग, तो जब पैसे को लेके अगर बोले तो पेरेंट्स डोंट वांट यू टू स्पेंड, मतलब कितना भी हो जाए. तो आई रिमेंबर कि एक बार रेस्टोरेंट गए थे तो बिल आया. अब वो बिल आया, पापा को, अब मेरे को ऑकवर्ड लग रहा है बोलने में कि पापा हम पे करेंगे. बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है. तो मैं ऐसा कि पापा हम पे करेंगे. तो पापा बोलते क्यों नहीं. तो मैं बोलती अच्छा कमाने लगी है, दे देती है, एक बार दे देगी. तो आई पेड.
उसके बाद ठीक है पापा कुछ नहीं, नेक्स्ट दिन वापस गए तो आई टोल्ड कि आई पेड। 1-2 दिन ऐसे हुआ, पापा टोकने लगते थे, फिर अब ठीक है, अब तो पता ही है यही पे करेंगे तो। I used to live in East Delhi with my parents, जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था, ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, सब चीज़ें थी। तो पहले तो एक दिन रैंडमली उनको बोला कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, और गुड़गांव में जो बेस्ट पॉसिबल उस समय मैं अफोर्ड कर सकता था इन अ गुड लोकेलिटी, आई सेटल्ड देम अप देयर विद इन 2 days। फिर उसके बाद सॉर्टेड देयर और लॉजिस्टिक्स, बिकॉज गुड़गांव इन इटसेल्फ महंगा है रहने के लिए, तो उनका वो सब सॉर्ट कर दिया। अब वो खुशी से वहाँ पे रहते हैं, उनका मेंटल पीस रहता है, शांत जगह है, वॉक करते हैं, वो देख के अच्छा लगता है। बट मोर देन दैट टाइम, क्योंकि पहले मैं उनको ट्रिप्स पे भेजता था एवरी सेकेंड वीक, और वो वहाँ से मुझे ही याद कर रहे होते, मुझे ही कॉल कर रहे होते थे कि वो देखिए ये देखो ये देख ये देख। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं एटलीस्ट 6 महीने में एक बार तो जा सकता हूँ इनके साथ। तो मैंने वो टाइम निकाला उनके लिए कि यार चलो एक प्लान कर लो, मैं चल रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो दे फील गुड अबाउट इट। तो वो सबको जाके बताते, हम ना साथ में कश्मीर गए थे, हम साथ में नॉर्थ ईस्ट गए थे, हमने वो देखा, तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब दोनों चीज़ मुझे लगता है देनी बहुत जरूरी थी मेरे एंड पे। तो मैंने कुछ ऐसा बहुत महंगा भी तक तो नहीं दे पाया, श्योर बाद में। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है समय, ये जो हमें उस टाइम पर रियलाइज नहीं होता, बाद में जाके फिर आप यही सोचते रहते हो कितना टाइम दिया मैंने पेरेंट्स को। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड आई यू नो। तो हम लोगों ने आफ्टर, जब तक मेरे पापा, जब मैं 12th में था तब जाके पहला हमारा, उससे पहले हम लोग एक ही ट्रिप, 2 ट्रिप पे गए थे, मुझे याद है पूरे 12th तक। एक गोवा गए थे हम लोग, एक शिमला गए थे, उसके अलावा कहीं नहीं गए थे हम, जब तक मैं 12th तक था। 12th पे पापा हमको पहला अपना यूरो ट्रिप, SOTC का यूरोप ट्रिप था, सबके साथ 50 फैमिली के साथ हम लोग गए थे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम एज अ फैमिली वी वेंट समथिंग, एंड आई रिमेंबर यू नो कितना अच्छा लगा था कि सब लोग साथ में एक 10-15 दिन के लिए बाहर गए हैं। एंड आई डिसाइडेड कि जब मेरे पास पैसे होंगे, व्हेन आई एम एबल टू अफोर्ड इट, आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट वी डू दिस एवरी ईयर। Yes. एंड इट टुक मी 10 साल आफ्टर दैट, 2004 की बात है, 2015 के बाद मैंने अब बोला कि अब हम लोग ना साथ में करेंगे। Every year, every New Year's after that, I made sure with my parents, until COVID, every year we would go to a new country and we'll have New Year's in a new country after that. So beautiful. हर जगह मैं उनको जर्मनी के लेकर गए, हांगकांग गया था, सिंगापुर गया था। Every year I made sure एक कंट्री जरूर जाएंगे, but as a family, nothing was more important for us and nothing brought us more joy than the fact that हम लोग हर साल ना, मम्मा यही पूछती थी कि इस साल कहाँ जा रहे हैं। वो मेरे लिए होता था यार, getting to do this. प्लस आपको मौका मिल रहा है कि अपने पेरेंट्स को एकदम कंफर्टेबल लाइफ दे दो। I fully agree with you. Last वाला था, one piece of financial advice you would give to your 18-year-old self. Never chase money. Never ever chase it. It comes to you when it has to come to you, and never sell or trade your happiness, your morals, or the things that you want to do, don't want to do for money. If you don't want to do this job, no matter what they pay you, never do that job. If you don't, like, that money is never going to satisfy you. It's never the amount. It's always the barakat, the word that I taught you today. It's always the blessings behind the money that really follows. I want this mindset. This is great. Thank you. Take risks until you're 25, save after that. So take enormous amount of risk in your early 20s and then learn about saving in the late 20s. I guess that is the one. Why take all the risk in the first? आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, आपके पास एक छोटी उम्र में ना एक करेज होता है, तब आपको लगता नहीं है कि आप लूज कर रहे हो अपने एज पे, सो इट्स इजियर एंड ऑल्सो यू हैव मोर रश। I'll agree with what नायाब said, मतलब टेक रिस्क, स्टार्टिंग में जितना रिस्क ले सकते हो, ऐसी रिस्क मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लो। सीए करने के बाद आई वर्कड फॉर 3 months, रिजाइन, डिड नॉट टेल माई पेरेंट्स कि मैं रिजाइन कर रही हूँ, मैं घर आ गई वापस, एंड देन थॉट ऑफ कि ठीक है कंटेंट स्टार्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट 6 months आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, बट 6 months आई वॉज ट्राइंग कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, थोड़ा सा ये सब अपने आप को रेडी करूँ। सो वो 6 months हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन जो अभी मैं कर रही हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया। एंड अगर उस समय मेरे पास वो टाइम नहीं रहता है, या फिर उस समय मैंने उतना रिस्क नहीं लिया होता कि लेट मी लीव माई जॉब एंड ट्राई समथिंग न्यू, तो आई वुडंट हैव डन दिस। तो आई थिंक स्टार्टिंग में वर्क ऑन योर स्किल, टेक रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट करो, बट आफ्टर यू हैव सेट aside some amount for your skills and everything. To do big things in life, it's very important आपके roots strong हो, आपकी foundation strong हो, और वो आपको पहले उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी मंजिल खड़ी करने से पहले उसकी नींव स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी होती है। बट यू नो, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ द म्यूचुअल्स और SIPs, और अपने मनी को प्लान करना अभी से सीखना शुरू कर दो। बिकॉज जब 25 के हो गए, 26 के हो गए, 27 के हो गए ना, फिर आप जब सीखोगे ना तो आपको लगेगा यार लेट हो गया। बिल्कुल। सो आई थिंक whatever, Start as early as possible. yeah, as early as you can, start reading, start understanding money. Don't think यार अभी तो पैसा कमाते नहीं, क्यों समझें। Learn from your father, learn from your mother, learn from the books,
from एंड यू नो everything. छोटे अमाउंट के अंदर जैसे हमने बात की है लाइफ इंश्योरेंस अभी 500 रुपए में भी आ जाता है. course. ये छोटे अमाउंट के अंदर भी आपके पास आ सकता है, कोई बड़ी बहुत कंपाउंड हो सकता है. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. Yeah, वो इट्स वेरी discipline आज से इंपॉर्टेंट ही रखना शुरू कर बिल्कुल. दो. I feel before I give the financial advice, I would just describe how I was at 18, which is I used to invest right from the age of 16 or 17. मेरे म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं, वो आज तक चल रहे हैं. तब क्या बात. 500 से शुरू किए थे, That आज is what, थोड़े बढ़ गए हैं. Great. Everyone should do. एंड मैंने कभी बहुत ज्यादा पैसे को तवज्जो भी उस सेंस में नहीं दी कि मैं दोस्तों के साथ खाऊं ना ताकि मेरे पैसे बच जाएं. दोस्त हैं, उसके पास पैसे नहीं है, चल मैं खिला दूंगा. तो ऑल आई वुड से टू माई 18-year-old सेल्फ इज ठीक कर रहा है, अच्छा है. करता जा. तो मैं सच बताऊं 35 में मैंने शुरू किया है. आई एम नॉट इवन जोकिंग अबाउट दिस फॉर द लॉन्गर. एक तो यार इट अगेन एज इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट टू अ प्लेस वेयर आई फेल्ट कंफर्टेबल इन माय लाइफ बिकॉज मेरी ट्रेडिशनल जॉब रही है. आई स्टार्टेड अ कंपनी एट 31-32 एंड देन टू फिर कोविड आ गया टू गेट टू अ प्लेस वेयर आई एक्चुअली हैड मनी दैट आई कुड सेव. इनफैक्ट अगेन इट्स जस्ट गॉड्स ग्रेस दैट ऑल द मनी दैट आई मेड टिल आई वाज 35-36 उसके बाद हर साल आई हैव बीन मेकिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी. बट इट हैज so टेकन great. yeah but it has taken me all of this time to get here and now since जब पैसे थे तब किए but I wish I had that advice जब कम भी थे ना वो उस टाइम भी करना चाहिए था. तो thank you so much everyone. It's so nice to hear these refreshing thoughts इतना and you such all of you are such good sons, good daughters, good friends. बहुत ही अच्छे हैं यार and it just makes me feel so again inspired. जितने भी यहाँ पर हैं कोई भी there is none of these are this is the traditional media industry but everybody in this industry has not been from has not had that backing, has not come from a family of privilege or has not come from an established setup. सबने अपने आप अपनी जिंदगी में जो बनाया कमाया खुद कमाया. So it's just so nice to see that your value systems are also so lovely. मेरा तो फाइनेंशियल एडवाइस सबके लिए यही है, सिद्धार्थ से बहुत जल्दी दोस्ती कर लो, बहुत फायदे में रहो. और सादिया के पापा से. और सादिया के पापा से. मेरा एक अल्टीमेट गोल पता है, मैं बताना चाहता हूँ टू एंड दिस. बता. दैट मैं इतना कमाऊँ ना कि मुझे कभी सोचना ना पड़े कि मेरे पास क्या है कैसा बात है है. यार. मैं मतलब चाहूँ कि मैं चलते फिरते सबकी मदद कर पाऊँ. यू नो इतना कमाना चाहता हूँ. BMW की मेरी मदद कर देना. जैसे कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता कितना मनी हाँ है, मतलब मैं कितना चाहता हूँ मैं नहीं है. इतना कि छोड़ दे मुझे यार. भी कोई प्रॉब्लम ना हो कि मैं प्राइवेट में जाना चाहता हूँ, मैं कहीं भी जाना चाहता हूँ, मैं जा सकता हूँ और मैं साथ ही साथ सबकी हेल्प भी कर सकूँ. और मैं इतना कमाना ये बोल Twice सकूं before कि spending. मनी कांट बाय हैप्पीनेस. Happiness. Yes. क्योंकि उसके लिए उतना पैसा होना जरूरी है कि उतना पैसा आ जाए कि मैं बोल दूं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस. Completely true. Thank you friends. Thank you so so much. थैंक यू much. सो